Hi everyone. So we are doing NCRT and we are covering macroeconomics, and already we have started determination of income and employment, and we have covered three parts of the chapter, and this is the final fourth part of the chapter, and I was supposed to cover it by end of last week, but nonetheless we'll complete it today. And yeah, let's just quickly begin. So इसके ऊपर का part सारा we have already covered, and we have covered aggregate demand, aggregate supply, we have covered paradox of thrift, and we've almost completed everything. So what's remaining is the concept of deficient demand, the concept of excess demand, and all of that. And I'll not only be explaining it from NCRT but also somewhere else, so that the entire conceptual clarity is there for you all. Okay, so let's just quickly begin. First of all, we'll read this paragraph because in NCRT सिर्फ इतना ही पैराग्राफ दिया है, इतने में ही बताया एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, बहुत डिटेल में नहीं बताया. But the question they ask in exam is in much more detail. So let's just start. The equilibrium output in the economy also determines the level of employment. Okay. So क्यों क्या कह रहे हैं वो कि जब हम इक्विलिब्रियम लेवल देखते हैं, जब हम ये देखते हैं एडी है, जब हम ये देखते हैं एएस है, तो जहां पर इक्विलिब्रियम लेवल होता है उसको हम एक्स एक्सिस को इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट सब कहते हैं. तो आपको लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी पता चल रहा है इकोनॉमी में, राइट? सो यही वो बोल रहा है कि आपको लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी पता चलता है given the quantities of other factors of production. Think of a production function at aggregate level. So this means that level of output determined by equality of y with AD does not necessarily means level of output at which everybody is employed. What is this line said? This line is saying कि ये जो level है, जिस level पे basically equilibrium हुआ है, ये AD है, ठीक है, ये Y है, Y is equal to AS होता है. तो ये सारा कुछ कहाँ करा है हमने? If you've not watched Y, AS is equal to Y, what is AS, what is AD? So I'll link the above three parts जो हम पहले कर चुके हैं in the description box, and you can definitely go and watch those videos. So if you haven't watched those videos, don't watch this one. First go and watch three parts, and then you can come back and finish this up. Okay. So yeah, this is equilibrium point, and this is level of employment in the economy. So this is Y star. But Y star इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट का लेवल है. वाई स्टार मतलब 100 लोग एम्प्लॉयड है, ठीक है. बट व्हाट इफ इकोनॉमी में 150 पीपल है जो कि विलिंग एंड एबल टू वर्क है एंड हु आर सर्चिंग फॉर वर्क. तो ये अनएम्प्लॉयड लोग थे. इसमें से सिर्फ सारे लोग काम ढूंढ रहे हैं टोटल, इनमें से सिर्फ 100 लोग ही काम कर पा रहे हैं, बाकी के 50 लोग काम ढूंढ रहे हैं. दे आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, दे आर फाइंडिंग जॉब्स. सो इनको कल जॉब दो, ये काम करने लग जाएंगे, बट राइट नाउ दे आर नॉट. ओके. सो यानी इसका मतलब है एडी एस जब इक्वल होता है या जब एडी इज इक्वल टू वाई होता है, वो पॉइंट पे एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी तो पता लगता है, बट नेसेसरीली वो पॉइंट नहीं है जहां पर सारे ही रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है. which means कि आपका AD is equal to AS का equilibrium does not ensure or guarantees that there's full employment in the economy. All right, that's in the simple words. Then full employment level of income is that level of income where all the factors of production are fully employed in the production process. We call that the equilibrium attained at the point of equality of Y is equal to AD by itself does not signify full employment of resources. ठीक है. So equilibrium only means that if left to itself, the level of income in the economy will not change when there is unemployment in the economy, which means the equilibrium level of output it may be more, it may be less than the full employment level of the output. So full employment level से ज्यादा या कम हो सकता है, ठीक है. If it is less than full employment of output, it is due to the fact that demand is not enough to employ all the factors. ठीक है. This situation is called deficient demand. तो ये सारा कुछ ये लाइन एक लाइन में लिख दिया है कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट है. हो सकता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये हो सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये हो. अगर फुल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब डेफिशिएंट डिमांड है, और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट कम होगा मतलब एक्सेस डिमांड है. ऐसा कुछ इन्होंने बोल दिया. ठीक है. सिर्फ इतना बोला इस पैराग्राफ में, एंड इन्होंने चैप्टर खत्म कर दिया, आपको समरी दे दी है. But what does it mean? Okay, what does it mean? Now I'll explain it to you, so don't worry. ठीक है. I'll explain you the concept of deficient demand and excess demand. Let's quickly begin. Let me just change the color. Okay. So आपको AD क्या हो गया है? AD
लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. AD इज इक्वल टू AS इक्विलिब्रियम में, ये तो पता है. ठीक है. अगर आपको ये पता है तो आपको पता है कि आपका ये जो है ये होता है इनकम या फिर आउटपुट या फिर एम्प्लॉयमेंट. Okay, hi everyone. I think there was just a glitch. So I'll start again. Okay, so this is your income, output, and employment. This is your AD and AS. That's your AD is equal to C plus I plus G अगर 3 sector model ले रहे हैं. This is your AS. एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना है, YE लिख देती हूँ. ठीक है, ये क्या हुआ, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम, कुछ भी कह सकते हो. ठीक है. अब आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट है इकोनॉमी में, फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट ये भी हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट ये भी हो सकता है. एग्रीगेट सप्लाई हमने कहा नेशनल इनकम के इक्वल है. ठीक है. तो वो तो आपकी ज्यादा या कम, वो तो आपकी ऐसे 45 डिग्री लाइन ही रहती है. ठीक है. आपकी एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की अलग होती है, क्योंकि जब आपके पूरे रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज इकोनॉमी में अवेलेबल हैं, जब वो सारे ही रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड कितनी है, वो ज्यादा या कम हो सकती है. तो जिसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड F, यानी एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे. ठीक है. जब आपका Y यहां पर है, Y ज्यादा है, ये इक्विलिब्रियम है. ठीक है. तो अब आपको ये बेसिक चीजें पता लग गई. नाउ इमेजिन, आई टेल यू, नाउ इमेजिन देयर इज अ केस, दिस इज योर बेसिक केस, दैट्स योर AD. Always mark all the points. Okay guys, I don't know why facing some issues, maybe in the net or something else. Let's carry on. Okay, always mark all the X's. This is income, output, or employment. Okay, and this is your ADAS. This is your A bar, aggregate, आपका autonomous expenditures. This is your YE, and this is E. ठीक है. वॉट इफ आपका जो एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट का, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इतना है, पर एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट पर है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है. अगर वो ज्यादा है तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट यहां होना चाहिए, पर आउटपुट आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर यहाँ है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आउटपुट इतना प्रोड्यूस होना चाहिए, या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपकी फुल फुल एम्प्लॉयमेंट पे आपका जो प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट है वो इतनी है, यहाँ पे YF है, तो आपका अभी करंटली एम्प्लॉयमेंट इतना है फुल एम्प्लॉयमेंट पे, जबकि इतना होना चाहिए आपका एम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमी में इतना एम्प्लॉयमेंट हो सकता है जब सारे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड हो. तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गई, और ये डिमांड इतनी है इकोनॉमी में करंटली. ठीक है. प्रेजेंट डिमांड इतनी है, पर फुल एम्प्लॉयमेंट पे डिमांड इतनी चाहिए. ठीक है. फुल एम्प्लॉयमेंट डिमांड आपकी इतनी है, तो इसका मतलब करंटली जो डिमांड है आपकी वो क्या है, कम है. प्रेजेंटली डिमांड कम है ना, तो इसको हम डेफिशिएंट डिमांड कह देते हैं. डेफिशिएंट डिमांड मतलब जितनी डिमांड की रिक्वायरमेंट है फुल एम्प्लॉयमेंट पे उतनी नहीं है, उससे कम है डिमांड. कितने से कम है, इतने से कम है हमारी डिमांड. एंड आपकी डिमांड क्योंकि कम है, इस वजह से जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आउटपुट होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, लेकिन वो कम है. एंड बीच का जो पार्ट है यानी YF माइनस YE है, वो आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट है. क्लियर. ठीक है. अभी दोनों केसेस में और भी कुछ बताऊंगी. दूसरा केस भी देखो. दूसरा केस क्या कह रहा है आपका, दूसरा केस कह रहा है आपका AD इतना है, प्रेजेंटली AS इतना है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आपका जो आउटपुट है वो यहाँ पर है, सॉरी प्रेजेंट आउटपुट इतना है इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पर है आपका सीन. ठीक है. पर आपका एग्रीगेट डिमांड जितना रिक्वायर्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, वो तो नीचे है. एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट का इतना है,
यानी आपका जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट यहाँ है। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी यहाँ पे रिसोर्सेज फुल्ली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो आउटपुट यहाँ आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम कभी आउटपुट मार्क करते ही नहीं, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट पे आपका जो आउटपुट, सारे रिसोर्सेज, अगर जितने रिसोर्सेज हैं सब फुल्ली एम्प्लॉयड हो गए, जब आपने सारे एग्जॉस्ट कर दिए, तो आउटपुट उससे ज्यादा कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, तो इकोनॉमी चाह रही है, एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे कर रही है, पर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ पर ही है। तो यानी ये क्या है आपका एग्रीगेट डिमांड? ये एक्सेस डिमांड है। एंड जब भी एक्सेस डिमांड होता है, आउटपुट इतना ही रह सकता है, पर इकोनॉमी में फिर भी डिमांड ज्यादा है, कितने से? इतने गैप से। तो इसका मतलब है आउटपुट तो बढ़ नहीं सकता, आउटपुट तो इतना ही रहेगा इकोनॉमी में। तो यानी जो ये एक्सेस डिमांड है, इसको करेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे? प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर दोगे, एंड जब प्राइसेस इंक्रीज कर दोगे तो आएगी इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन, तो इस गैप को, जो एडी जो ग्रेटर होता है एग्रीगेट डिमांड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट से, तो ये जो गैप होता है, इस गैप को क्या कहते हैं? हम इस गैप को कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि ये इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। क्यों इन्फ्लेशन क्रिएट करता है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में ज्यादा हो रही है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो सकती है। जो जितने भी रिसोर्सेज है वो फुल्ली एम्प्लॉयड होने के बाद इतनी ही डिमांड संभाल सकते हैं, पर हम लोग उससे कहीं ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो अगर इकोनॉमी टोटल 20 यूनिट ऑफ टी शर्ट ही प्रोड्यूस कर सकती है, पर इकोनॉमी में 25 टी शर्ट्स की डिमांड आ रही है, तो फिर आप जो प्रोड्यूसर हो, अगर आप 20 टी शर्ट के प्राइस बढ़ा दोगे, ताकि आपको पता है कि 25 लोग डिमांड कर रहे हैं, तो उसमें से कोई ना कोई 20 लोग जो पहले ज्यादा प्राइस दे देंगे वो ले जाओ, क्योंकि इकोनॉमी में आउटपुट कम है पर डिमांड ज्यादा है। जब डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस बढ़ेंगे, चीजें महंगी होंगी, तो वो गैप इन्फ्लेशनरी गैप कहलाएगा, एंड ये केस एक्सेस डिमांड का केस होता है। ऑल राइट, सिंपल, गुड। ठीक है, अब क्या होता है अगर मैं आपको यही केस बताऊं? आप यही केस ले लो, ठीक है, हम एक केस लेके चलते हैं, एंड मैं आपको एक केस से ही चीजें एक्सप्लेन करूंगी, ताकि रिवर्स भी आपको समझ आ जाए। वील कनेक्ट दिस चैप्टर, एडीएस चैप्टर, टू मनी एंड बैंकिंग एंड टू गवर्नमेंट बजट। डोंट वरी। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट में जो पार्ट हमारा रह गया था वो आई एम कवरिंग टुडे, सो दैट यू अंडरस्टैंड। ये जो एक्सेस डिमांड का आपका केस है, एक्सेस डिमांड का क्या केस हुआ है आपका? कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट पे इतनी है, एंड आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इतना है, तो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट ये है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमी में डिमांड जो प्रेजेंटली हो रही है वो थोड़ी ज्यादा हो रही है, एंड एग्रीगेट डिमांड जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो इतना है। तो आउटपुट यहाँ होना चाहिए, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा आउटपुट जा नहीं सकता, जिसकी वजह से हम इसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। अब इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप है, ये नंबर वन, एंड इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है। जब इकोनॉमी में ये सीन है, तो इसको अगर हमें करेक्ट करना है, इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? राइट, वी, टू पीपल कैन करेक्ट दिस। हु कैन करेक्ट दिस? RBI can correct this. In that case, it would be monetary policy. So we can use monetary policy to correct the situation. Correct the situation of what? Inflationary gap. Correct the situation of inflation. Or government can correct it through fiscal policy. Now we are studying ADAS chapter, but what are we doing? We are connecting monetary policy and money and banking. So RBI can use either quantitative measure or qualitative. इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब लोगों के पास, मैं हमेशा बोलती हूँ, पीपल हैव मोर पैसा, तभी वो खर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उनके हाथ से पैसा ले लो। उनके हाथ से पैसा कैसे लोगे? कोई भी बैंक रेट वगैरह इंक्रीज करके। ठीक है, बैंक रेट इंक्रीज करके, रेपो रेट इंक्रीज करके, मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर कर, ये सब कर कर लोगों के हाथ से पैसा ले लोगे। ठीक है, या लोन कम कर दोगे। तो अब इसमें ये आप सारे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर यूज कर सकते हो। फिस्कल पॉलिसी मैंने दो तरीके से बताई थी, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यूज हो सकता है, या फिर टैक्सेस यूज हो सकता है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे यूज हो सकता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आप कम कर दो। जब आप लेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करोगे, तो आपका इकोनॉमी में लोग कम हायर करोगे। गवर्नमेंट अगर हाईवे बनाने कम कर दे, हाईवे पे खर्चा कम कर दे, गवर्नमेंट पॉलिसी पे खर्चा कम कर दे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करके, तो कम लोग ऑन बोर्ड आ रहे हैं, उनकी लिविंग, इनकी इनकम कम हो रही है, वो खर्चा कम करेंगे ऑब्वियसली। या फिर गवर्नमेंट टैक्सेस जो है वो बढ़ा दे। टैक्सेस बढ़ गए, आपको आपकी जो
पर्सनल इनकम थी, उसमें से अगर आप ज्यादा टैक्सेस दे दो, अगर आपकी पर्सनल इनकम 1000 है, ठीक है, इसमें से आप 100 टैक्स दे रहे थे, तो आपकी 900 डिस्पोजेबल इनकम बच रही थी। अब अगर आपकी 1000 ही इनकम है, लेकिन उसमें से टैक्स ही 300 रुपए दे दो, तो खर्च करने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए तो 700 रुपए ही बचे ना। ठीक है, तो कम खर्चा करोगे, कम डिमांड करोगे, कम डिमांड करोगे तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। यही रिवर्स हो जाता है डेफिशिएंट डिमांड के केस में, जब हम कोशिश करते हैं लोगों के हाथ में पैसा जाए। सो दिस इज हाउ योर ADAS chapter is connected to your monetary, I mean money and banking chapter, and it is also connected to your government budget chapter. Okay, this is how these chapters are all interconnected. आई होप यू अंडरस्टूड, ये कनेक्शन है यहाँ का। ठीक है, दिस इज हाउ यू करेक्टेड, बट आई ऑल्सो हैव समथिंग एल्स फॉर यू। सी, दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम अ स्टूडेंट, सो आई वांट टू शो यू दिस क्वेश्चन बिकॉज लोग इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में बहुत गलती करते हैं। सो सी, इस क्वेश्चन में एक था कि इन द गिवन फिगर, होल्ड ऑन, शी आस्क्ड मी इन अ गिवन फिगर what was the gap KT represent, state any two fiscal measures to correct the situation। ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड ऑफ कोर्स उसमें उसने ये क्वेश्चन पूछा। अब जब उसने ये क्वेश्चन पूछा, सिंपल है, मैम व्हाट इज द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट, इट वाज हर क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब आपको क्लियरली क्या दिख रहा है, आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ सो दैट यू डोंट हैव एनी इश्यू। द क्वेश्चन इज आस्किंग कि आपका, और ये YF है, ठीक है, ये YF है। तो अब यहाँ पर ये आपको AD, ऊपर AD1 है, AD है, यहाँ पे ये नहीं बताया आपको AD फुल एम्प्लॉयमेंट कौन सा है, क्या है, ठीक है, ये सब नहीं बताया हमें। लेकिन कॉमन सेंस क्या कहती है, कॉमन सेंस कहती है कि YF पे जहां इक्विलिब्रियम है, जो AD AS से मिल रहा है इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे, वही फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये जो K है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड इतनी हो सकती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम K होता है। लेकिन प्रेजेंटली एग्रीगेट डिमांड कितनी है, प्रेजेंटली एग्रीगेट डिमांड जो है वो इतनी है, यानी प्रेजेंट इक्विलिब्रियम आपका YE यहाँ पर है। ठीक है, तो डिमांड कम है, AD is less than what aggregate demand can be at full employment. That means there is deficient demand. When there is deficient demand, less demand, ठीक है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो आउटपुट है वो 100 प्रोड्यूस होना चाहिए, 100 की डिमांड होनी चाहिए, पर डिमांड सिर्फ 70 की हो रही है, तो 30 एक्स्ट्रा चीजें पड़ी है। तो आप जब एक्स्ट्रा आपके पास कुछ बच जाता है स्टॉक, आप क्या करते हो, सस्ते में बेचने लगते हो। ठीक है, प्राइस कम कर देते हो, प्राइस कम करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिफ्लेशनरी गैप। सो के टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के टी रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्लेशनरी गैप। KT represents deflationary gap. I always ask this to my students because most of the students answer what? Most of the students say, ma'am, this is inflationary gap. Why do they say this is inflationary gap? क्योंकि उन्हें लगता है AD ज्यादा है इस वाले AD से, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ AD ज्यादा है, तो ये वाला क्या हो गया, ये आपका इन्फ्लेशनरी गैप हो गया। गाइज नो, फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड इतनी होनी चाहिए, बट एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इतनी है, actual aggregate demand is less than what aggregate demand should be at full employment level, which is why demand economy में overall कम है और deflationary gap है। और जब deflationary gap है economy में, ठीक है, if economy is going through a deflationary gap and they are asking two fiscal measures, fiscal measure टू ही होंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यूज होगा या टैक्सेस यूज होगा। या तो सरकार, लोगों के पास पैसा नहीं है, वो डिमांड नहीं कर रहे, इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है, आप चाहते हो इकोनॉमी डिमांड करे, इकोनॉमी की डिमांड बढ़कर वापस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाए। ठीक है, अगर डिमांड बढ़ानी है, लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। दोगे कैसे, टैक्सेस कम कर दो। तो अगर आपकी इनकम 1000 रुपए थी और उसमें से आप 100 रुपए टैक्स दे रहे थे, आपके पास 900 बच रहे थे खर्चा करने को, डिमांड करने को, तो अब गवर्नमेंट का बनता है कि गवर्नमेंट आपके 1000 रुपए में से टैक्स सिर्फ 50 रुपए ले, ताकि आपके पास 950 रुपीज बच जाए खर्चा करने को। तो टैक्सेस या तो कम कर दो या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, गवर्नमेंट और ज्यादा हाईवेज बनाए, और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करे, और ज्यादा स्कीम्स निकाले, ताकि और लोगों को लाइवलीहुड मिले, उनके हाथ में इनकम जाए, उनका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो। Right, so these are two fiscal measures, and this is a CBSE question. I always bring up this kind of a question for you all. Then look at the another question, similar kind of question, similar, ठीक है, ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे देख लो, टेक अ पॉज एंड लेट मी नो इसमें आंसर क्या होना चाहिए। इसमें बोल रहा है ना, गिवन फिगर KT क्या रिप्रेजेंट करता है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या था KT,
अब दोबारा से बहुत ध्यान से देखना, दोनों क्वेश्चन सेम है, आपको लिखना है सेम है या डिफरेंट है, और क्यों सेम है या क्यों डिफरेंट है। प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, व्हाई डू यू थिंक इट्स सेम एंड डिफरेंट। आई एम अगेन क्लीनिंग अप दिस डायग्राम सो दैट यू कैन कंपेयर वेल फॉर योर सेल्फ। केटी पूछा है दोनों क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में केटी पूछा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पूछ रहा है कि केटी क्या है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछ रहा है केटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, केटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब आपको दिख रहा है केटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टू फिजिकल मेजर, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। ऑल राइट, सेम क्वेश्चन। चलो, यहाँ पे भी केटी पूछ रहा है, हर क्वेश्चन में केटी पूछा जा रहा है। अब यहाँ केटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप। उसके लिए हम हमेशा, सबसे पहले ट्रिक होती है बच्चों, हम क्या देखते हैं सबसे पहले, आई ऑलवेज से मेरे स्टूडेंट्स को, सबसे पहले देखो वाईएफ का है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, यस ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। अगर ये फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इक्विलिब्रियम जहां हो रहा होगा वो एडी जो होगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला एडी होगा। इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है, एडीएस से कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। तो ये वाला एडी जो है ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला एडी है। पर एग्रीगेट डिमांड एक्चुअली इकोनॉमी में ज्यादा है। एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में आपका जो एग्रीगेट डिमांड है, होल्ड ऑन, your aggregate demand in the economy is greater than what aggregate demand should be at full employment level, which means there's a situation of excess demand. इतना excess demand है, यानी अगर आपका मतलब जो एक्चुअल आपका इतना ज्यादा डिमांड हो रही है, आपकी 100 यूनिट्स की डिमांड हो रही है, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेस करके सिर्फ 70 यूनिट प्रोड्यूस हो सकती है, 30 की एक्स्ट्रा डिमांड हो रही है, तो मैं प्राइसेस बढ़ा दूंगी। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, इसको मैं बोलूंगी इन्फ्लेशनरी गैप। सेम केटी पूछा है दोनों क्वेश्चन में, एक में वो डिफ्लेशनरी है एक में इन्फ्लेशनरी है। प्लीज वीडियो कंप्लीट हो जाए तो इसको दोबारा देखना टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही थी। केटी क्यू पिछले क्वेश्चन में, केटी क्यू इस क्वेश्चन में डिफ्लेशनरी था क्योंकि आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम हुआ था, एडी एएस यहाँ मिल रहा था फुल एम्प्लॉयमेंट पे, इसका मतलब ये फुल एम्प्लॉयमेंट एडी था एंड एक्चुअल एडी लेस था। एक्सक्यूज मी। ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट एडी ज्यादा था, और यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट एडी मिल रहे कहां पर है, यहाँ पर। तो फुल एम्प्लॉयमेंट एडी जो है वो लेस है आपके एक्चुअल एडी से। it is that is why it is inflationary gap। okay, I hope that's clear। ओके, एंड दैट्स व्हाट देव एक्सप्लेन, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर होती है वो सिचुएशन जहां एडी एक होता है, प्लान एडी इज इक्वल टू प्लान एस होता है, अंडर इक्विलिब्रियम कब होता है। सो ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला एडी है, ये एएस है। तो ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट हुआ, पर एक्चुअल डिमांड कम है, एक्चुअल डिमांड लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो आपको भी पता है कि डिमांड कम है, डेफिशिएंट डिमांड है, तो ये जो गैप है इस गैप को हम डेफिशिएंट डिमांड कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, क्योंकि अंडर एम्प्लॉय हो रहा है रिसोर्स, फुल्ली एम्प्लॉयमेंट पे यहाँ होने चाहिए थे पर अभी अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रही है। ठीक है, सिंपल डेफिशिएंट डिमांड हो गया ये केस, आप देख सकते हो। यू कैन जस्ट पॉज एंड रीड, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू सो आई वोंट रिपीट इट। okay, then you have another thing which is over full employment demand, यानी full employment पे डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है, फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इतना है। आउटपुट इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है, कहाँ से लाओगे, लेबर बची ही नहीं, सब लोग तो एम्प्लॉयड है, पैसे बचे ही नहीं, सब तो एम्प्लॉयड है, रिसोर्सेज बचे ही नहीं, सब एम्प्लॉयड है। सब एम्प्लॉयड होने के बाद भी अगर डिमांड ज्यादा है, एक्चुअल डिमांड ज्यादा है फुल से, तो भाई आउटपुट तो नहीं बढ़ सकता क्योंकि सारा आउटपुट ऑलरेडी बढ़ चुका है। अब अगर सारा आउटपुट बढ़ चुका है, आउटपुट नहीं बढ़ सकता, तो क्या होगा, ये इन्फ्लेशनरी गैप है और प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट इज द थिंग, दिस इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जो कि आउटपुट नहीं हो सकता, तो कभी भी इसलिए आउटपुट शो मत करना। फुल एम्प्लॉयमेंट पे एडीएस यहाँ पर है, एडीएस फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ है, एंड एक्सेस डिमांड वाला इतना है, लेकिन इस पे आउटपुट मत शो करना क्योंकि ये आउटपुट आ ही नहीं सकता, इक्विलिब्रियम आउटपुट ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि फुल्ली एम्प्लॉयड हो चुके रिसोर्स सारे यहाँ पे। समझ गए, अंडर एम्प्लॉयमेंट दिखा सकते हैं, पर जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई है उसके बियॉन्ड कैसे इक्विलिब्रियम आ सकता है आउटपुट का, तो वो तो प्राइस राइज होगा और बैलेंस हो जाएगा। ऑलरेडी गॉट इट। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको पता है एक्चुअल डिमांड और सप्लाई इतनी होनी चाहिए, आपको पता है इक्विलिब्रियम इतना होना चाहिए, बट नहीं हो सकता ना, फुल्ली एम्प्लॉयड यहाँ पे हो गया है। तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट कभी एक्स एक्सेस पे मत शो करना, जिस दैट यू नो कि क्योंकि एक्सेस डिमांड हुई है इस वजह से इन्फ्लेशनरी गैप बन गया है। Okay, so it is called inflationary gap, and with that we have covered ADAS chapter, but now we are establishing a connection between government budget and ADAS. This is on your special request because NCERT से आना चाहिए चीजें,
सो एनसीईआरटी में गवर्नमेंट बजट में थोड़ा सा पार्ट मैंने छोड़ दिया था, जो मैंने कहा था कि मैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के साथ पढ़ाऊंगी, सो टुडे इज द डे। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं बेसिकली आपको उस पर्टिकुलर पोर्शन में वो ये समझा रहे थे आपको कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर देखते हो कि आउटपुट कितना बड़ा ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो इसी तरह वो गवर्नमेंट बजट चैप्टर में ये दिखाते हैं कि इक्विलिब्रियम आउटपुट या इनकम कितनी बड़ी ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर कितनी बड़ी ड्यू टू चेंज इन टैक्सेस, या फिर क्या चेंज आया ड्यू टू चेंज इन ट्रांसफर पेमेंट। तो बेसिकली वो आपको गवर्नमेंट मल्टीप्लायर बता रहे होते हैं कि क्या चेंज आया है इन चीजों से। ठीक है, सो अब क्या होता है एडी थ्री सेक्टर मॉडल में C+I+D। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, मैंने आपको ये पिछली क्लास में बताई हुई है, प्लीज आप वीडियो देख कर आओ, जहां मैंने बताया कि अगर आपकी इनकम 1,000 रुपए है लेकिन वो आप खर्चा करने के लिए, डिस्पोजेबल इनकम नहीं है आपकी, खर्चा करने के लिए जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इनकम जिसपे आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है, या आप 1,000 रुपए आपकी इनकम है, तो ये 1,000 की 1,000 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें से 100 रुपए टैक्सेस दोगे, हो सकता है सरकार आपको 10 रुपए का ट्रांसफर रिजर्व दे दे, तो आपकी खर्चे के लिए इनकम कितनी बनी? खर्चे के लिए तो 910 बनी ना इनकम, तो ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती है, द इनकम दैट यू कैन डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब है विच यू कैन स्पेंड, जिसका आप खर्चा कर सकते हो। ऑल राइट, क्लियर। तो अब इक्वेशन देख लेते हैं। कंजम्पशन फंक्शन आपको पता है क्या होता है, C इज इक्वल टू C बार प्लस CYD। इसका मतलब होता है, आप ओपन कर दो CYD को, Y माइनस टी प्लस TR, ये आपकी सी कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन हो गई, टोटल कंजम्पशन हो गई। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, C+I+D, तो C बार प्लस C, और यहाँ पे हो गया, और ओपन कर दी इक्वेशन। अब इक्विलिब्रियम में उसको Y के इक्वल रख दिया। जब सारा कुछ कर लिया तो मेरे पास इक्विलिब्रियम इनकम कितनी आई आपकी, इक्विलिब्रियम इनकम मेरे पास ये आ गई 1/1 माइनस बी, हम बी लिखते हैं उसको, एंड ब्रैकेट में हमारे पास आ गया C बार। पहले क्या आता था, C बार I बार G बार। ठीक है, अब इसके साथ दो चीजें और आ गई, C बार प्लस I बार प्लस G बार। अब इसके साथ आ गया माइनस CT, मतलब BT, एंड प्लस BTR। ये चीजें आ गई, ये पूरी इक्वेशन आ गई। अब हम बस ये देखना है कि, अब आप ये देखो, आपको बेसिक चीज देखनी है, आपको ये समझना है कि यार मतलब मेरे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज होने से मेरे वाई में क्या चेंज आया। तो अगर मैं इसको डेल्टा वाई बाय डेल्टा जी देखना चाहूँ, तो जी के साथ तो कोई फैक्टर नहीं है, तो चेंज क्या होगा, 1/1 माइनस बी ही रहेगा चेंज। करेक्ट, मैथ्स अगर बेसिक आती है। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि, ये छोड़ दो, अगर मैं देखना चाहूँ टैक्स की वजह से कितना चेंज आएगा, तो टैक्स की वजह से डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी अगर करूँ तो चेंज क्या आएगा आपका, टी के साथ देख लो। बाकी सारी चीजें ना जीरो कर दो, 0 0 0 0 0 0, तो क्या बचा, माइनस बी टी अपॉन 1 माइनस बी। तो टी तो यहाँ पे फैक्टर चेंज हो गया, तो ये चेंज आएगा आपका। यानी बेसिकली क्या होगा आपका, बेसिकली एक सिंपल टर्म्स में, सो व्हेन वी डू, हम जब, हमें जब देखना है बेसिकली कि इनकम में टैक्स की वजह से क्या चेंज आया, तो टैक्स इंक्रीज होने से इनकम डिक्रीज हो गई है, तो सबको पता है। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने से नेशनल इनकम या आपकी टोटल इनकम जो है वो भी इंक्रीज हो गई, इतने फैक्टर से, 1/1 माइनस एमपीसी से। यही सेम मल्टीप्लायर था आपका। ठीक है, एंड अगर मुझे तीसरा इफेक्ट देखना है, मुझे यहाँ पे टीआर का इफेक्ट देखना है, तो मैं बाकी सारी चीजें जीरो कर दूंगी। तो अगर मुझे डेल्टा वाई में ट्रांसफर रिसीट की वजह से कितना चेंज आया ये देखना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, B/1 माइनस बी, ये बी है ना इसके साथ जुड़ा हुआ, तो ये आपको पता लग गया। ठीक है, तो यही चीज वो बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं आपको। ठीक है, पहले आप ये इक्वेशन दोबारा समझ लो मुझसे यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा इजी पड़े। मैं आपको इक्वेशन समझा देती हूँ। इक्वेशन क्या बनी है आपकी, इक्वेशन बेसिकली, मुझे सबसे पहले ये पता है कि जो डिस्पोजेबल इनकम है मेरी, वो टोटल इनकम में से जो मेरा टैक्स माइनस कर दिया एंड ट्रांसफर रिसीट मिल गई उसके इक्वल है। तो जब मैं अपना कंजम्पशन फंक्शन देखती हूँ, जो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था फर्स्ट पार्ट में, तो वो मुझे पता है कि मेरा C बार है प्लस डी वाई है। लेकिन ये पोर्शन मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है और ये मेरी इनकम पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरी कंजम्पशन मेरी टोटल इनकम पे डिपेंड नहीं करती, मेरी कंजम्पशन डिपेंड करती है मेरी डिस्पोजेबल इनकम पे, जो मैं खर्चा कर सकती हूँ ऑब्वियसली। तो अगर इस पे डिपेंड करती है तो मेरा टोटल सी क्या हुआ, C बार प्लस बी, और वाई डी में क्या आया, Y माइनस टी प्लस टी आर। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे कंजम्पशन क्या हो गई, C बार प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस बी टी आर। ठीक है, ये वो वाला बीटी नहीं है, बैक ट्रिप ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। बट ये मेरी टोटल कंजम्पशन हो गई।
करेक्ट। अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है इक्विलिब्रियम में। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इन इक्विलिब्रियम। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस बी टी आर। ये तो सी है पूरा का पूरा, ये क्या हो गया कंपोनेंट, ये तो कंजम्पशन हो गया। प्लस प्लस ये तो प्लस आई बार प्लस जी बार, क्योंकि ये तो ऑटोनॉमस है तो फिक्स्ड है। ठीक है, तो अब अगर मुझे यही इक्वेशन का आपका टोटल करना हो और आपकी इनकम निकालनी हो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो ये इनकम इनकम यहाँ पे सेम है, मैं इसको यहाँ ले जाऊंगी, वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार माइनस बी टी प्लस बी टी आर। यही हुआ। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या हो गया, यहां से वन माइनस बी कॉमन आके डिनोमिनेटर में चला गया, वन अपॉन वन माइनस बी सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार माइनस बी टी प्लस बी टी आर। अब जब भी हमें चेंज इन इनकम देखना होता है मल्टीप्लायर निकालने के लिए, हमें देखना होता है चेंज इन इनकम ड्यू टू एनी अदर फैक्टर। जब हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में, हम ये देख रहे थे यहाँ पे कि आपका जो y है उसमें कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन आई। तो हमने बाकी सारी चीजें अगर जीरो कर दोगे यहाँ पे आई के साथ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका वन माइनस वन बाय बी, और यहाँ पे सिर्फ आई बार बचेगा। तो आई बार हम डिनोमिनेटर में ले आए चेंज इन देखने के लिए, तो यहाँ क्या बचा, वन बाय वन माइनस बी, यानी वन बाय वन माइनस एमपीसी, यानी वन अपॉन एमपीएस। यही देखा था। अब सिमिलरली हम देख रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने की वजह से इनकम में कितना चेंज आया, अगेन सेम आया, सेम। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी, सेम फॉर्मूला। ठीक है, टैक्स की वजह से टैक्स बढ़ाओगे तो इनकम कम होगी, ये माइनस बी से दिख रहा है। तो जब आपने सब जीरो कर दिया तो माइनस बी बचा, माइनस बी को बाहर ले आओ, तो माइनस बी अपॉन वन माइनस बी, यानी माइनस एमपीसी अपॉन वन माइनस एमपीसी। इतने से कम हो जाएगी इनकम टैक्स बढ़ाने से। ठीक है, एंड सेम आपका टीआर केस में होगा, यही समझाया है अभी तक। अब वापस चलते हैं इस पे। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर जो आपका है वो आपने देख लिया। इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर आपका जो मल्टी एमपीसी है वो 0.8 है, तो आप अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100 रुपए से बढ़ाओगे, 100 रुपए से आपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया, तो आपकी इनकम 500 रुपए से बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है अगर आप टैक्स भी 100 रुपए से बढ़ाओगे, ये टी है, अगर आप टैक्स भी 100 रुपए से बढ़ाओगे तो आपकी जो इनकम है, आपकी इनकम यहाँ पर कितनी हो जाएगी टैक्स 100 से बढ़ाने से। अब आप फॉर्मूला देखो। ठीक है, दोनों ही केसेस में आपको ये पता है कि आपका एमपीसी जो है दैट इज 0.8। ठीक है, तो आपको पता है फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी मतलब या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो या टैक्स कम कर दो अगर लोगों को पैसा देना है। तो ये होता है ये, और ये होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, टैक्स चेंज करोगे तो। अब अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे 100 रुपए से, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला वन अपॉन वन माइनस एमपीसी होता है। तो या आपका 100 रुपए से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ा, तो आपकी इनकम इनकम कितने से बढ़ेगी, आपकी इनकम होगी वन बाय वन माइनस एमपीसी। तो ये 0.8 हो गया आपका, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इज इक्वल टू वन बाय वन माइनस 0.8 इज इक्वल टू वन बाय 0.2। ठीक है, दैट इज 5। सो इफ यू इंक्रीज योर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय 100, योर डेल्टा वाई will increase 5 times ऑफ दिस इंक्रीज। दिस मीन्स इनकम बढ़ेगी 500 रुपए से। करेक्ट, सिंपल। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी टैक्स बढ़ाने से क्या होता है, टैक्स बढ़ाने से इनकम कम होती है, माइनस एमपीसी अपॉन वन माइनस एमपीसी। तो टैक्स मल्टीप्लायर क्या हुआ आपका, टैक्स मल्टीप्लायर आपका आया, एमपीसी कितना है -0.2 अपॉन सॉरी -0.8 अपॉन वन माइनस 0.8 तो ये हुआ -4 आपका टैक्स मल्टीप्लायर। टैक्स मल्टीप्लायर -4 होने का मतलब क्या है कि अगर आपने टैक्स बढ़ाया 100 रुपीज से, लोगों का टैक्स लगा दिया, तो इनकम आपकी नेशनल इनकम डिक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स। 4 टाइम्स डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि -4 है, यानी 400 रुपए से। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, वो क्या होता है आपका बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, वो हम क्या कहते हैं कि अगर सरकार की फिस्कल पॉलिसी टूल्स क्या होता है, सरकार एक टाइम पे सोचे कि मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दूं 100 रुपए से, एंड मैं वही जितना खर्चा कर रहा हूं मैं
सरकार जितना खर्चा कर रही है 100 रुपए का, वो मैं लोगों से ले लूं टैक्स के रूप में 100 रुपए, तो मैं तो बैलेंस हो गया। ठीक है। तो जब सरकार अगर ये सोचती है करने की कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी सरकार 100 रुपए से, तो इनकम बढ़ जाएगी 500 रुपए। लेकिन सरकार जैसे ही टैक्स भी बढ़ाएगी 100 रुपए से, तो इनकम कम हो जाएगी 100 रुपीज, 400 रुपए से। तो यानी जो नेट इंक्रीज इन इनकम आएगा वो 100 रुपए आएगा। तो इसका मतलब है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट बोलती है कि मैं खर्चा बढ़ा देती हूँ, गवर्नमेंट अपनी जेब से तो खर्चा कर नहीं रही, टैक्स गवर्नमेंट की इनकम होती है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि मैं टैक्स बढ़ाऊंगी, लोगों से 100 रुपए लूंगी और 100 रुपए खर्चा कर दूंगी। तो अगर मैं लोगों से 100 रुपए ले रही हूँ टैक्स लगा के और 100 रुपए ही मैं खर्चा कर रही हूँ, तो इवेंचुअली जो नेट इंक्रीज आ रहा है लोगों की इनकम में वो भी 100 रुपए ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे ही लोगों पे टैक्स लगाए, बेसिकली मैंने अपना खर्चा बढ़ाया, लोगों पे खर्चा किया, तो उससे लोगों की इनकम 5 टाइम्स बढ़ गई, 500 रुपए। लेकिन जैसे ही मैंने लोगों से पैसे लिए टैक्स के रूप में, जैसे ही मैंने टैक्स लगाया 100 रुपए का, तो लोगों की इनकम भी कम हो गई 400 रुपए से, तो नेट इंक्रीज आया 100 का, उसे हम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है। सो यही होता है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी, प्लस यानी ये 100 रुपीज से बड़ा एंड ये भी 100 रुपीज से बड़ा, आपने ये चेंज करा, तो ये क्या आ जाता है 1/1 - b अपॉन -b अपॉन 1 - b, तो ये इक्वल टू 1 आ जाता है अगर फॉर्मूला वाइज देखो। तो 1 रुपी इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फाइनेंस बाय 1 रुपी इंक्रीज इन टी, यही मैं कह रही हूँ, अपनी जेब से तो दे नहीं रहे, तो 1 रुपए लोगों से लिए, टैक्स लिया, और वही 1 रुपए लोगों पे खर्च दिए। तो जब ये होता है तो इक्विलिब्रियम इनकम भी इंक्रीज होती है 1 रुपी से। ओके। तो दिस ब्रिंग्स इनटू फोकस an interesting point. What is that interesting point? Tax changes have a smaller per rupee impact on equilibrium income than गवर्नमेंट और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि टैक्स से कम चेंज होता है इक्विलिब्रियम इनकम, यानी टैक्स का नेगेटिव इम्पैक्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट के पॉजिटिव इम्पैक्ट पे भारी पड़ता है। क्या? उल्टा है। ठीक है। आपका गवर्नमेंट, मैंने ये बताया था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इज इक्वल टू 1/1 - एमपीसी। ठीक है। यानी 100 रुपए से जब बढ़ाओगे इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट, और अगर एमपीसी 0.8 है, तो आपका जो इनकम बढ़ेगी वो 5 टाइम्स बढ़ेगी, 5 टाइम्स बढ़ेगी यानी 500 रुपए से बढ़ेगी। लेकिन आप टैक्स भी अगर 100 रुपए से बढ़ाओगे और एमपीसी 0.8 ही है, तो आपकी इनकम जो कम होगी वो 400 रुपए से होगी। यानी टैक्स का इफेक्ट उतना स्ट्रांगली नहीं आएगा जितना स्ट्रांगली आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट आ रहा है। So if both G and T increase by the same amount as at the same time, so that budgetary balance is maintained. बजटरी बैलेंस मतलब कि गवर्नमेंट कह रही है मेरा बजट तो बैलेंस रहे, यार 1 रुपए लोगों पे खर्चना है तो वो 1 रुपए लोगों से ही ले लू ना, कि 100 रुपए लोगों से लिए, टैक्स लगाया 100 रुपए, और 100 रुपए का लोगों पे खर्चा कर दिया, या फिर 100 रुपए की स्कीम से लोगों को दिखाया कि भाई मैं आपका भला कर रही हूँ, और आपको 100 रुपए दे दिए, और वही आपकी जेब से निकाल लिया आप पे टैक्स लगा के। तो मेरा बजट तो बैलेंस हो गया ना, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट की बजट बैलेंस शीट में यहाँ पर जो आपकी रिसीट होती है और एक्सपेंडिचर होता है, तो टैक्स तो रिसीट हो गई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया आपका। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपने बढ़ाया 100 से, टैक्स भी बढ़ाया 100 से, तो आपका तो बैलेंस हो गया। लेकिन जब आप अपना बैलेंस कर रहे हो, आप इक्विलिब्रियम इंक्रीज कर रहे हो बाय द सेम अमाउंट जिससे आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है। आई होप यू हैव गॉट दिस इज अ लिटिल टेक्निकल, अगर अभी भी नहीं समझ आया है सो इट वुड बी ग्रेट कि यू आस्क मी डायरेक्टली rather than getting confused. All right, so don't get confused, it is very easy, and that was the part which was there in the government budget chapter. So now today we have, and do read the summary and everything. So guys, today we have covered what today finally macroeconomics mein hum bahut aage aa chuke hain, अब only national income is remaining. We have covered rest of the chapters हम पीछे से शुरू हुए थे. So open economy, macroeconomics, balance of payment, foreign exchange, and then money and banking, government budget, determination of income and employment, everything we've covered in detail from NCERT, word by word, line by line. And I hope the series is useful for you. Do share your feedback, how you like it. We'll cover national income this week. So stay tuned, keep practicing. Let me know if you need anything else. And thank you so much. Bye bye.